Hello, good morning. Yesterday we have discussed about the Lorentz transformation equations और जस्ट मैंने उसका केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। मैं फिर बता दूं क्या आवश्यकता पड़ गई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, क्योंकि इसके पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने विचार किया था। इन द केस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द कंडीशन इज v is very less than c. The velocity of movement is very less in comparison to the velocity of light. लेकिन the velocity of motion becomes comparable to the velocity of light. In such cases, the Galilean transformation equations fail. तो ऐसी स्थितियों को when v is comparable to the velocity of light, हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भी शुरू करने के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और कुछ परिवर्तन लॉरेंट ने उनमें किया हुआ है। बड़े सिंपल से परिवर्तन है, एक बार समझ लेंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इस पे लॉरेंट ने ये नोटिस किया कि राइट हैंड साइड पर वी आर गेटिंग द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद s फ्रेम ऑफ रेफरेंस and on the left hand side we are getting x dash, a parameter associated with s dash frame of reference। और उन्होंने माना x dash is not exactly equal to x minus vt, rather it is proportional to x minus vt and there is a proportionality constant lambda. Lambda is a proportionality constant and the value for lambda becomes equal to 1, then it will be converted into Galilean transformation equation। देखो x डैश की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू यदि एक हो तो x माइनस वी टी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा एंड दिस वी कॉल एज इक्वेशन नंबर 1। देन वी बिल्ड अप द सेकंड इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड द इनवर्स फॉर्म इज x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी। जब इस इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं तो वी आर नोटिसिंग कि लेफ्ट हैंड साइड x is a parameter associated with s frame of reference, whereas on the right hand side we are having the parameter associated with s dash frame of reference and s frame of reference. And we know also in the Galilean transformation equation that t is equal to t dash. So let us replace this t by t dash. So the problem is similar to the equation 1. On the right hand side now we are having x dash, t dash, the parameters associated with s dash frame of reference, and on the left hand side it is a parameter x associated with s frame of reference. He also assumed here that x is proportional to x dash vt dash and there is a proportionality constant again lambda, और इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बिल्डअप कर लिया। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कुछ फिजिकल अपीयरेंस जो मैथमेटिकल इक्वेशन था उसमें परिवर्तन किया एंड देन वी हैव एडेड ए proportionality constant lambda. Now with the help of these two expressions, now let us put the value of 1 into equation number 2. So x is equal to lambda times x dash, and x dash is in capital bracket lambda times in place of x dash from equation 1 lambda x minus vt is the value of x dash being replaced through equation number 1 plus vt dash
plus Vt dash. This can further be arranged as x is equal to lambda into lambda square into x. So lambda square x. Lambda into lambda square into x. Lambda into lambda square minus Vt. So second term is lambda square Vt. Let me again explain. Lambda into lambda square into x. The first term, lambda square minus Vt is the second term, and plus the Vt dash. इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अरेंज कर ले रहे हैं. Now with the help of these two expressions, we can take help of equation number 1 in getting the value of x dash replaced by equation number 1. तो इसलिए we will be getting x is equal to lambda x dash, and in place of x dash we write lambda into x minus Vt, x minus Vt, and plus Vt dash, plus Vt dash. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से हमने ऐसा लिख लिया. इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें. x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स. लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर Vt प्लस Vt डैश. दिस वी गेट. अब ये तीन पैरामीटर यहां ऐसे आ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस x and t. They are related to s frame of reference. Here we are getting the s dash frame of reference in terms of t dash. तो इसलिए इसको एक तरफ कर लें और सबको s के पैरामीटर को एक तरफ कर लें. जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर x can be taken outside, x 1 minus lambda square inside the bracket plus lambda square Vt. दिस इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, x माइनस लैम्डा स्क्वायर x टेकन आउटसाइड 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. दिस बिकम्स प्लस लैम्डा स्क्वायर Vt. इट इज इक्वल टू Vt डैश, एंड Vt डैश यही गड़बड़ हो गया इनटू लैम्डा. सो इट इज लैम्डा Vt डैश, इट इज लैम्डा Vt डैश. बात समझ में आई? लैम्डा का गुणा होना है इसमें भी, फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी. तो लैम्डा Vt डैश इज द सेकेंड टर्म. सो सेकेंड टर्म लैम्डा Vt डैश on the right hand side and rest of the terms are being transferred on the left hand side. अब लैम्डा की v की इसमें डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट, and when it has been divided by lambda v, so the first term is x into 1 minus lambda square divided by lambda v. यहाँ lambda v से डिवाइड करोगे तो प्लस lambda will cancel, v will cancel, it is lambda, v cancels, lambda t. This is equal to lambda v से आपने डिवाइड कर दिया तो ओनली t डैश. So x into 1 minus lambda square divided by lambda v plus lambda कटा तो एक lambda बचा, v cancels, lambda into t. This is equal to t dash. इसको हम t dash के टर्म में लिख लें. So t dash on the left hand side, t dash is equal to lambda t plus x times 1 minus lambda square divided by lambda v. T dash is equal to lambda t plus x times 1 minus lambda square by lambda v. This has, let us call, equation number 3. This becomes equation number 3. Now let us use the Einstein's postulate
नंबर 2। नंबर 2 के आइंस्टाइन पास्टुलेट का हम प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार द वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम व्हाटसोएवर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी। सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट c ही रहती है, c माइनस बी या c प्लस बी नहीं होती। तो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c। So since c is the velocity of light, and thereby if there is a distance using second postulate of Einstein, if there is a distance measured in s frame of reference x, then this distance will be obtained by moving the light signal in time t. So x is equal to ct. Say equation number 4a. Let me again explain it. T is the time in the s frame of reference. C is the velocity of light in s frame of reference. So ct will be equal to x. Obviously. S dash frame of reference को यदि कंसीडर करें तो डिस्टेंस इज x डैश, and x डैश के लिए फिर the velocity of light is again c in s dash frame of reference also. So it is c, but the corresponding time is t dash. This we call as 4b. Let me again explain. Using second postulate of Einstein, और सेकेंड postulate of Einstein ये सजेस्ट करता है कि whatsoever the inertial frame of reference may be, the velocity of light will remain c. तो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी c है। यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x की वैल्यू इसलिए ct हो जाएगी, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x डैश की वैल्यू ct डैश हो जाएगी। सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार यस फ्रेम में भी वेलोसिटी c है, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी c है, c ही है। x और x डैश की इस वैल्यू का इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रखने पर क्या हमको प्राप्त होगा, तो हम यही यूज कर लेते हैं। इन इक्वेशन की जगह पर इक्वेशन नंबर 3 आई गया है, इसलिए इसको हमने रब कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation 1 and 4a and 4b, from equation 1 4a and 4b इनका प्रयोग करें। 4a 4b की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखा जाए, और जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x डैश इज ct डैश दिस इज इक्वल टू लैम्डा x, एंड x की वैल्यू है ct माइनस vt। क्या किया, केवल इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ही यूज किया। अभी इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें इक्वेशंस 4a और 4 की वैल्यू x और x डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये मिला। नाउ t इज कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा t, ब्रैकेट में बच गया c माइनस b, वी गेट c माइनस b। से इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशंस 4a एंड 4b, और फिर ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशंस 2 4a एंड 4b इनका प्रयोग करें। तो यहां देखो इक्वेशन नंबर 2 x इज ct, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, एज सच x डैश इज ct डैश प्लस vt डैश
यहाँ भी हम देखते हैं टी डैश कॉमन है, टी डैश कैन बी टेकन आउटसाइड, सो इट इज लैम्डा टी डैश, दिस इज लैम्डा टी डैश टेकन आउटसाइड, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा c प्लस b, से दिस एज इक्वेशन नंबर 6। आइंस्टाइन के सेकंड पास्टुलेट का प्रयोग किया, दो इक्वेशंस बन गए 4a 4b, और 4a 4b की मदद हमने ले ली एक बार इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 5, और एक बार 4a 4b की मदद से इक्वेशन नंबर 6 लिखा जा सकता है। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 6, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 3 को मैं अभी मिटा दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे पूछ लूंगा। मल्टीप्लाइंग equation 5 and equation by equation 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करिए, तो c इंटू सी इज सी स्क्वायर टी टी डैश, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर टी टी डैश और ब्रैकेट में c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, it is like a minus b into a plus b, the resultant will be a square minus b square, that is c square minus b square, so here we get c square minus b square। मैं पुनः इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 का गुणा किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड पे गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर टी टी डैश प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड पे गुणा करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर टी टी डैश, लैम्डा स्क्वायर टी टी डैश, और ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह चीज, और इसलिए आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो टी टी डैश इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टी टी डैश इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, दिस विल कैंसल, और इसलिए लैम्डा स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर divided by c square minus b square. Lambda square is equal to c square by c square minus b square. Or we can write down the value of lambda, the proportionality constant chosen by Lagrange. लैम्डा की वैल्यू आ गई c स्क्वायर का नीचे भी भाग दे दीजिए, नीचे ऊपर दोनों भाग दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करिए, तो इट इज 1 and this is also 1 minus v square by c square. 1 divided by 1 minus v square by c square, और लैम्डा आप निकाल रहे हो, अभी c स्क्वायर का भाग दिए तो इसको लैम्डा स्क्वायर ही लिख लेते हैं। डिवाइडिंग बाई c स्क्वायर बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इतना आएगा, और द वैल्यू फॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 divided by square root 1 minus b square by c square is the value for the proportionality constant introduced by Lagrange, और लैम्डा की वैल्यू हमको पता चल गई। b is the velocity with which the system is moving, c is the velocity of light, so 1 divided by square root of 1 minus v square by c square is the value for lambda. Let me write this as equation number 7। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया, और इक्वेशन नंबर 7 की सहायता से हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया, और लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। पैरामीटर ज्ञात हैं, v is the velocity with which the system is moving, c is the velocity of light, 1 is a numerical constant, so we now know the value for the lambda। लैम्डा की वैल्यू के बारे में यदि विचार भी कर लो, if v is equal to 0 it is not moving, it is static,
v is equal to 0, so this term, second term under square root becomes 0. It is, the value is only 1, 1 by 1 is 1, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसका मतलब यदि सिस्टम रुका हुआ है, स्टैटिक है, इनर्शियल फ्रेम इज एट रेस्ट, ऐसा है, तो उस समय लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी एज नीडेड इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नॉट ओनली दिस, इफ द वैल्यू फॉर v इज वेरी वेरी लेस देन c, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए आवश्यक है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, और v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा तो v स्क्वायर v बाई c कम होगा, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर और कम हो जाएगा। इट कैन बी ड्रॉप्ड, इट कैन बी निगलेक्टेड, और निगलेक्ट कर देंगे तो फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 बाई 1 इज 1, अगेन द वैल्यू फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो द वैल्यू फॉर लैम्डा हियर रिप्रेजेंटेड थ्रू इक्वेशन नंबर 7, ये लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी किन परिस्थितियों में, व्हेन आइदर v इज इक्वल टू 0 और v इज वेरी वेरी लेस देन c, which is the case of the Galilean transformation equation, और इसलिए हमको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये स्थिति प्राप्त होगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई तो हम लिख सकते हैं x डैश गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, एंड इट इज नॉट सिंपली x माइनस वी टी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए x डैश की वैल्यू आ गई x माइनस वी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चूंकि लैम्डा की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू हम जानते ही x डैश का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यस है, राइट हैंड साइड पर सारे पैरामीटर यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हैं, x और t दो ही पैरामीटर है। v is the velocity with which the system is moving, it is a constant value, और v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डायमेंशनली इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल घटा देंगे, और इस ढंग से द पैरामीटर ऑफ यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी रिलेटेड टू द पैरामीटर ऑफ यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लैम्डा की वैल्यू जानती है, ऐसी स्थिति आएगी। Since the system is moving along x axis, तो इसलिए y डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, y डैश इज इक्वल टू y। इट इज सोनली मूविंग along x axis, तो z एक्सिस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, z डैश इज इक्वल टू z। So these are the three equations we get as far as the Lorentz transformation equations are concerned, और इसको हम कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स x y z, और एक्स वाई जेड कैसे बदलेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंतर्गत, वो इस तरह से इनकी वैल्यू एक्सप्रेस की जा सकती है। दिस वी कॉल एज इक्वेशन नंबर 8। पूरा सेट ऑफ एक्सप्रेशंस नहीं मिले, अभी टाइम के बारे में हमको ज्ञात नहीं, और टाइम के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और टाइम के लिए भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और टाइम के लिए हम आपसे एक्सप्रेशन पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 क्या था, और मैंने कहीं लिख नहीं रखा है, तो लेट मी राइट, थोड़ा पाँच कर दीजिए। सो आई राइट हियर द इक्वेशन नंबर 3 and you have also noted in your copies, so please check. This is the expression t dash is equal to lambda t plus x times 1 minus lambda square divided by lambda v. This is the expression we have obtained as equation number 3. Please check it and see whether it is the correct expression. ठीक, तो ये सही एक्सप्रेशन है। ओके, इसमें से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, और रीअरेंज करके इसको भी एक प्रॉपर शेप में लिखा जा सकता है, जैसे x डैश y डैश z डैश के लिए आपने लिखा है, उसी तरह से t डैश के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, तो कंप्लीट सेट विल बी देयर
as far as the coordinates x dash, y dash, z dash, t dash are concerned, सबके इक्वेशंस मिल जाएंगे। इसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए, t dash इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस, let me take lambda x by v outside. X by v is already there. I am taking also lambda in the numerator outside. So divided by lambda also. And when we take this outside, lambda into x by v, this becomes lambda square. So 1 minus lambda square by lambda square. Okay. Lambda x by v. Lambda makes it lambda square. Lambda x by v taken outside. So 1 minus lambda square by lambda square. Lambda square से divide कर दीजिए. It is equal to lambda t plus lambda x by v into 1 by lambda square minus 1. हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखते हैं कि द वैल्यू फॉर लैम्डा, हमने डिस्कस किया इक्वेशन नंबर 7 से, द वैल्यू फॉर लैम्डा is 1 for Galilean transformation equation. Otherwise, if the value for v becomes considerable, is comparable to c, तो एक में से कुछ घटेगा ही, और एक में से घटेगा तो लैम्डा की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी। तो आपसे यही पूछ दिया जाए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा, then the minimum value of the proportionality constant lambda is 1 and it will be more than 1. तो लैम्डा के लिए लिमिट आ गई, लैम्डा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू मिनिमम 1 होगी या लैम्डा की वैल्यू फिर 1 से ज्यादा हो सकती है। तो चूंकि लैम्डा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर 1 से कम आ जाएगा, -1 है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसलिए नेगेटिव को हम बाहर ले लेते हैं एंड दिस बिकम्स लैम्डा टी माइनस लैम्डा एक्स बाई वी, और माइनस आपने बाहर ले लिया तो दिस बिकम्स 1 माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। से दिस एज इक्वेशन नंबर 7, 8, 9। अब यहां कैपिटल ब्रैकेट में वी नीड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। कैपिटल ब्रैकेट की वैल्यू निकालने के लिए फिर लैम्डा की वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। वी यूज द वैल्यू फॉर लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। स्क्वायर कर दीजिए तो लैम्डा स्क्वायर स्क्वायरिंग इक्वेशन 7, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो हमको 1 बाई लैम्डा स्क्वायर चाहिए तो उसको हम उधर घटा दें, तो गुणा करो पहले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। या 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू देखो यहीं से निकल जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लैम्डा स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस है, हियर इज 1, इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ, इसको भी हम मिटा लेते हैं, we get the value of 1 minus 1 by lambda square as needed here, 1 minus 1 by lambda square, 1 minus 1 by lambda square, it is equal to v square by c square, obvious, 1 minus 1 by lambda square, it is equal to v square by c square, और इसलिए इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहां आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। Substituting the value of
1 by 1 minus lambda square. From equation 10, in this expression, we get lambda t dash. It is equal to lambda t minus lambda x by v into this bracket, and this bracket is equal to v square by c square. V square by c square. Now this v cancels, तो हमको वैल्यू प्राप्त हो गई। ये इक्वेशन नंबर 10 की अब आवश्यकता है नहीं, लेट मी रब इट, मैं इसे मिटा देता हूं। टी डैश की वैल्यू आ गई लैम्डा टी 10, टी डैश इट इज इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लैम्डा एक्स वी, lambda x v divided by lambda x v divided by c square. Lambda can be taken outside from both the terms, so lambda taken outside, यहाँ से बच जाएगा t माइनस lambda को बाहर आपने ले लिया तो vx या xv divided by c square. So this is the expression for t dash. We get a expression for t dash also here. Now t, x, both are the parameter associated with s frame of reference. V is the velocity of movement, c is the velocity of light, and on the left hand side we are getting the parameter associated with s dash frame of reference, और इसलिए t dash को हम लिख सकते हैं t dash is equal to t minus vx by c square divided by the value for lambda, and the value for lambda we know 1 minus v square by c square. So this is the expression for the t dash. Say equation number 9, 10. So with the help of equation number 8, we get the transformation equation for x dash, y dash, z dash, the space coordinate, and with the help of equation number 10, we get the transformation for the time coordinate. तो इन 8 और 10 को इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10 को साथ साथ लिखा जा सकता है, एंड देन वी गेट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टोटलिटी। और ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं एज फार एज x डैश इज कंसर्न, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी divided by square root 1 minus v square by c square is the value for x dash. Y dash remains unchanged, y dash is equal to y. Z dash is also, since it is moving along x axis, so z dash is equal to z, and t dash it is equal to t minus vx by c square whole divided by square root 1 minus v square by c square. So these are the 4 equations associated with the Lorentz transformation equations, and they are represented together with the help of these 4 equations. तो इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 11. तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए अब हम 4 पैरामीटर का प्रयोग कर रहे हैं, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश. गैलीलियन में भी हमने प्रयोग किया था 4 पैरामीटर x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, लेकिन वहां देखा था t डैश की वैल्यू t के बराबर है, t की वैल्यू t डैश के बराबर है, तो बहुत टाइम का बहुत रेलेवेंस नहीं रहा. लेकिन यहाँ देखो टाइम की वैल्यू चेंज कर रही है, स्पष्ट है इसी इक्वेशन से. सो दीज आर द 4 set of equations which are representing the Lorentz transformation equations, और इस तरह से Lorentz transformation equations को डेवलप किया जा सकता है. और उन परिस्थितियों में when the velocity of motion is very not less, it is comparable to the velocity of light. जब very less हो जाएगा तो उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन.
but when the velocity v becomes comparable to the velocity of light, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग किया जाएगा। यहां भी देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू सी, तो v बाई सी की वैल्यू कम आएगी, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी। मैंने आपको उदाहरण दिया है, 0.2 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 0.04, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1, कैन बी ड्रॉप्ड, कैन बी निगलेक्टेड। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस पी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z। और यहाँ भी देख लो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई, v इज वेरी वेरी लेस देन c, again divided by c, it is c square, so this will be a value very very small in comparison to t, so this can also be dropped and thereby t dash is equal to t. So we get the Galilean transformation equations in the situation when v is very very less than c, then we get x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t in the cases when v is very very less than c। तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं which are valid when v is comparable to the velocity of light। और अभी है, so these are the Lorentz transformation equations and we have come to know कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं when v is very very less than c। ये तो तब है जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से यूज स्टार्ट किया। यदि इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से स्टार्ट करें तो फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे प्राप्त होते हैं। फिर उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आउटकम आएगा बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने किया है वैसे ही कर सकते हो। एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, then the parameter of S frame of reference will be getting converted into parameters of x dash frame of reference। कैसे होगा, तो देखिए वो ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू x डैश प्लस बी टी डैश। ये इनवर्स फॉर्म में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए आपको याद भी होगा, x इज इक्वल टू x डैश प्लस बी टी डैश है। लेकिन ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में केवल इतना ही नहीं रहता, देखो गैलीलियन में भी x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, इनवर्स गैलीलियन में x इज इक्वल टू x डैश प्लस बी टी डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये x डैश टी डैश को x में कन्वर्ट करने का तरीका इस इक्वेशन से आप करेंगे। y will be equal to y dash, z will be equal to z dash, and t dash it is equal to t plus vx by c square। t dash is equal to x is this one, y is equal to y dash, and we now write down the expression for t, and t is x y z t। तो t की वैल्यू t डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इनवर्स इसको हम कहते हैं इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और इसे कह लीजिए इक्वेशन नंबर 12। तो इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये हैं। अंतर क्या है, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर को यस डैश फ्रेम में कन्वर्ट करते हो थ्रू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में
यस डैश के पैरामीटर को, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर को यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे गैलीलियन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। याद करना बहुत आसान है। स्टार्ट करो गैलीलियन से, मन में बात रहनी चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। यदि इतना आपको याद है तो फिर इसे आसानी से लिखा जा सकता है। गैलीलियन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को याद करो, एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई दिस वाई डैश इज इक्वल टू ये एंड टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। ये एक एडिशनल टर्म आता है तो टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर याद करना पड़ेगा और जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बिल्कुल याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो दीज आर द गैलीलियन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ध्यान रखो, देखो यहाँ निगेटिव आता है तो यहाँ भी निगेटिव आएगा। वाई डैश में कोई परिवर्तन नहीं, जेड डैश में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देखो इनवर्स फॉर्म में जब लिखोगे तो इनवर्स फॉर्म में एक्स की वैल्यू एक्स डैश प्लस वी टी डैश और बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आएगा और इस तरह से इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ भी when the velocity of movement is very less than c, so it gets converted into inverse Galilean transformation equation और यह लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द Galilean transformation equation in the cases when v is very less than c। लेकिन जब वेलोसिटी बिकम्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उस समय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का हम प्रयोग करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।